Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter agriculture, and under this chapter we have discussed about the major crops, and today we will continue with that agricultural development which we have started in the previous class. Okay, so as we have discussed that agricultural development means what efforts are made to increase the agricultural productivity so that the growing demand of food of increasing population can be met with, है ना? And as we have seen that in order to increase the agricultural productivity, so many ways are there, like increasing the cropped area, है ना? Then the number of crops grown, that can also be increased, then improving irrigation facilities, then use of fertilizers, use of pesticides, use of high yielding variety of seeds, use of machineries. So all these are various methods or various ways through which we can increase the agricultural production. And now we see that what we find that the ultimate aim of agricultural development is to increase food security. Okay, what is the ultimate aim of achieving this agricultural development? Food security. What do we mean by food security? To secure food to each and everyone who is living in the country. This is food security. कि हमें we should not go for import of food grains. The food related needs of the population should be fulfilled by the indigenous agricultural production only. We should not go for imports of food grains. This is food insecurity if we have to import the food grains. So this is the aim of agricultural development, food security. And as I told you in the previous class, we have in the whole all the countries of the world can be divided into two parts, like developing countries which has large population, and in these developing countries the large population leads to a small size of holding, है ना? Because the population is very large, so the size of the holding becomes very small. And in these developing countries mainly subsistence farming is done. It means that, as we have discussed earlier, what is subsistence farming? When the farming is done to fulfill the food related needs of the farmer, that is subsistence farming. So in developing countries the main purpose of agriculture is subsistence. Whereas if we compare it with the agricultural activity in the developed countries, what we find that in developed countries the size of the holding is very large. Why? Because the population is low, the density of population is low, the pressure of population on the land is low, and because of this the size of the holding is also high, is large, है ना? So countries like USA, Canada, Australia, which are the developed countries, in these countries we find that the main purpose of agriculture is not subsistence, but they do farming for the purpose of selling, that is commercial farming. So now we are going to compare these two. The first is a farm in India and the second is a farm in USA. इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, एंड वी विल स्टार्ट विथ अ फार्म इन इंडिया.
Okay, so what we see that there is a description of a small village Adilabad in Ghazipur district of UP. ठीक है, we are talking about UP. The district is Ghazi. है ना? The district is Ghazipur and the village is Adilabad. And now we see that in this village there is a farmer named Munna Lal. Munna Lal, he is a small farmer in this village, and the area of his farmland is about 1.5 hectare. Munna Lal. Area of his holding is 1.5 हेक्टेयर. ठीक है, अब ये जो 1.5 हेक्टेयर का फार्मलैंड है वो क्या है, उसके पास है. एंड हिज हाउस इज इन द मेन विलेज. जो मेन विलेज है वहाँ पे उसका हाउस है, और ये नहीं कि जहाँ पर उसका घर है वहीं पर उसका लैंड है. लैंड इज डिफरेंट एट अ डिफरेंट प्लेस फ्रॉम द हाउस, है ना. And in order to do this farming, what he does that he purchases high yielding variety of seeds from the market every alternate year. Every alternate year he purchases what? High yielding variety of seeds. Okay, and the land is fertile. The land is fertile, and he grows at least 2 crops in a year. Because the land is fertile, so it is possible for Munna Lal to grow 2 crops in a year. Okay, and normally these 2 crops are wheat or rice and pulses. या तो wheat और rice पैदा करता, या तो wheat या rice वो grow करता है, और दूसरा जो crop है वो pulse होता है according to need. अगर उसको wheat की ज़रूरत है तो wheat वो grow करेगा, rice की ज़रूरत है तो rice grow करेगा, और दूसरा जो फसल होता है उसकी वो pulse है. Now the farmer, this Munna Lal, he takes advice of his friends and elders as well as government agricultural officers about the farming practices. जो भी मतलब इनफॉर्मली वो अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, अपने एल्डर्स से एडवाइस लेता है कि कैसे उसे खेती करनी चाहिए, और गवर्नमेंट के एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स भी होते हैं जिससे कि वो एडवाइस लेता है. ठीक है, एंड फॉर द पर्पस ऑफ प्लॉइंग ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट. ठीक है, रेंट पे उसको एक ट्रैक्टर लेना पड़ता है for the purpose of this plowing. Okay, now what he does that his friend they are still using traditional method of using bullocks for plowing, है ना. bullocks का ही substitute है ना ट्रैक्टर मशीन से प्लॉइंग होती है तो बहुत नीचे तक होती है, आयरन का वो होता है प्लॉ करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, और जल्दी होता है. तो उसके फ्रेंड्स अभी भी बुलक्स से ही ये करते हैं, प्लॉइंग करते हैं. बट मुन्ना लाल जो है वो ट्रैक्टर रेंट पे लेकर उससे प्लॉइंग करता है. इसके अलावा पास की जो फील्ड है उसमें एक ट्यूबवेल भी है जिससे वो रेंट पे लेकर के उसके पानी को यूज़ करता है अपनी फील्ड को इरिगेट करने के लिए. तो हम क्या देख रहे हैं कि मुन्ना लाल के पास लैंड है, लैंड पे वो खेती करने के लिए क्या खरीद रहा है, area of holding is important for you, 1.5 hectare. ठीक है, and he is purchasing high yielding variety of seeds, है ना. और उसके बाद वो क्या करता है, वो अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से एडवाइस लेता है ना. एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स and government officials as well. Government
एग्रीकल्चरल ऑफिशियल्स, इनसे वो एडवाइस लेता है एंड देन ही टेक्स ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लॉइंग, है ना। प्लॉइंग के लिए वो ट्रैक्टर रेंट पे लेता है, ठीक है। इस तरह से उसकी जो खेती है वो हो रही है। एक और चीज़ है जो कि ही टेक्स ऑन रेंट दिस द वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल, है ना। टेक्स वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल ऑन रेंट, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स हमने देखा मुन्नालाल इस तरह से प्लॉइंग फार्मिंग करता है। अब आगे हम क्या देख रहे हैं कि जो मुन्नालाल है ही हैज़ 2 बफेलोज एंड फ्यू हैंस ऑल्सो, ठीक है। एंड बफेलोज की जो मिल्किंग करके वो मिल्क निकालता है, क्यों बफेलो रखा है? मिल्क के लिए ही ना। तो जो बफेलोज हैं उनके मिल्क को वो सेल करता है कहाँ पे? इन द कोऑपरेटिव्स। मिल्क कोऑपरेटिव है जो कि उसी के नियर बाई टाउन में लोकेटेड है। वहाँ पर जाकर वो सेल कर देता है अपने मिल्क को। और इसके अलावे ही इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी which this cooperative society advises him on the type of fodder for his animal, what safety measures should be taken to protect the health of the livestock and artificial insemination में artificially कैसे नए जो रिप्रोडक्शन हो उसके लिए भी वो एडवाइस लेता है अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स से, ठीक है। नाउ व्हाट वी फाइंड कि जितने भी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं वो सभी उसकी फार्म एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं। दे ऑल हेल्प इन द फार्म एक्टिविटीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी फाइंड दैट दिस sometimes he takes credit also from a bank or the agricultural cooperative society because he has to purchase a high yielding variety of seeds and implements. He has to give rent also, so sometimes he has to take credit also, okay. And then after this agriculture, after this farming, he sells his produce in the mandi, ठीक है। वो अपने जो भी प्रोड्यूस उसका होता है उसको वो मंडी में सेल करता है जो कि नियर बाई टाउन में ही लोकेटेड है। और ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स है दे लैकिंग दिस स्टोरेज फैसिलिटी। तो क्या होता है जो भी प्रोड्यूस होता है उसको उनको तुरंत सेल करना होता है बिकॉज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस आर पेरिशेबल, है ना। तुरंत में वो पेरिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी हो तो वो कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे और फिर बाद में बेचेंगे। अगर एक ही बार में, जैसे हर फसल का जो टाइमिंग होता है, जो सीज़न होती है वो एक ही होती है। अब एक ही समय में बहुत सारी मान लो पोटैटो की क्रॉप आ गई तो क्या होगा, पोटैटो का प्राइस लो हो जाएगा, है ना। तो कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण जो सारे जो फार्मर्स हैं उनको लो प्राइस पे सेल करना पड़ जाता है क्योंकि सप्लाई अचानक से बहुत ज़्यादा आ गई तो प्राइस लो हो जाता है। और हालांकि in recent years we can see that the government has taken some steps to develop this storage facility, to give this storage facility to the farmers, but ऐसा नहीं है कि हर फार्मर स्टोरेज फैसिलिटी को यूज़ कर रहा है। मोस्टली यही होता है कि जो भी पैदा उनकी होती है उसको तुरंत उनको सेल करना पड़ता है। तो दिस इज़ द कंडीशन विच इज़ एग्जिस्टिंग इन अ फार्म इन इंडिया, है ना। नाउ वी विल सी हाउ farming is done in USA, okay. So first of all, what we find that in USA, the average size of farm is much larger than that of an
इंडियन फार्म। जैसे हमने देखा इंडियन फार्म, अभी मुन्ना लाल को हमने डिस्कस किया, द साइज ऑफ हिज फार्म वाज 1.5 हेक्टेयर एंड नाउ वी सी दैट इन अ टिपिकल फार्म साइज इन द यूएसए इज अबाउट, यू जस्ट इमेजिन द डिफरेंस, it is about 250 hectares. This is the average size of farm, है ना, in US। ये 250 हेक्टेयर्स जो है वो यूएसए में एवरेज साइज है फार्म का, एंड हमारे यहाँ कितना था, 1.5 हेक्टेयर। सो दिस इज़ द डिफरेंस, है ना। आप लोग क्या देखते हैं, जो फार्मर्स होते हैं इन जनरल यही होता है कि दे रिसाइड्स इन द फार्म इटसेल्फ। जैसे हमने देखा मुन्ना लाल, उसका फार्म कहीं और है, उसका घर कहीं और है, देयर इज डिस्टेंस बिटवीन द फार्म एंड द house, but in case of USA we find that farmers resides in the farm only, ठीक है, and the major crops which are grown in the farms of USA are corn, then soya bean, wheat, cotton, sugar beet. These are the important crops, and you just see these are the crops which are कमर्शियल क्रॉप्स। मोस्टली ये सारे क्रॉप्स कमर्शियल क्रॉप्स ही होते हैं। एंड नाउ वी सी अबाउट अ पर्टिकुलर फार्मर हुज नेम इज जो हरान, ठीक है, ही इज अ फार्मर इन यूएसए। जैसे हमने मुन्ना लाल देखा था इंडिया में था, वैसे यहाँ पर जो हरान नाम का एक फार्मर है। ओके, एंड दिस जो हरान is he is a farmer in the Midwest USA। जो यूएसए का, जैसे हमने देखा इंडिया में यूपी में गाजीपुर में आदिलाबाद, तो मिडवेस्ट यूएसए जो जगह है वहाँ पर एक आयोवा स्टेट है, ठीक है, उस आयोवा स्टेट में वो अपना फार्म ओन करता है। मिडवेस्ट यूएसए, ठीक है, मिडवेस्ट यूएसए के आयोवा स्टेट में ही ओन्स अ फार्म। एंड व्हाट इज द साइज ऑफ फार्म ऑफ दिस जो हरान? द साइज इज अबाउट 300 हेक्टेयर्स। एवरेज था 250, तो एवरेज है वो, तो किसी के पास उससे ज़्यादा होगा, किसी के पास उससे कम होगा, बिकॉज ऑफ उस एवरेज पे पहुंचे। तो जो हरान जो है इनके पास 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है। Okay, and he grows corn on his field after making sure that soil and water resources meets the need of this crop। तो जो क्रॉप है वो क्या है, दैट इज कॉर्न, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बस वो कॉर्न जो है वो ग्रो कर लेता है, ऐसे नहीं, वो पहले श्योर होता है कि जो उसके फार्म की जो सॉइल की क्वालिटी है ना, और जो वाटर रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं वो कॉर्न के लिए सूटेबल है या नहीं। इफ़ ही फाइंड्स that the soil and water resources of whatever he is having is suitable for the corn, then only he start growing corn, ठीक है। अब क्या होता है, now adequate measures are taken to control pest that can damage the crop, because pest जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्रॉप के लिए। तो बहुत ही अच्छे मेजर्स वहाँ पे लिए जाते हैं पेस्ट के कंट्रोलिंग के लिए। वो क्या करता है, सबसे पहले तो अपने सॉइल के सैंपल्स जो है वो भेजता है टेस्टिंग लेबोरेटरी, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज में वो अपने सॉइल को भेजता है, सॉइल के सैंपल भेजता है टेस्ट करने के लिए, ये देखने के लिए कि जो उसके सॉइल में न्यूट्रिएंट है वो सफिशिएंट है या नहीं, है ना, क्या कंडीशन है उसके सॉइल की। बिकॉज वी आर नॉट, द फार्मर्स आर नॉट कि बस वो देख करके पहचान जाएंगे कि सॉइल कैसा है। फॉर दैट पर्पज देयर इज नीड ऑफ एन एक्सपर्ट, एंड फॉर दिस पर्पज ओनली द सैम्पल ऑफ सॉइल इज सेंट टू द सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, कि पता चले कि उसमें अगर फर्टिलाइज़र डालना है तो कौन सा फर्टिलाइज़र की उसमें ज़रूरत है। साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम को वो प्लान करते हैं।
minded scientific fertilizer program. So it's a high-tech farming actually, because what we find that his computer is also linked to the satellite. उसके पास एक कंप्यूटर है and this computer is linked to a satellite, and this satellite gives him a precise picture of his field. पूरे फील्ड 300 हेक्टेयर की फील्ड है. He cannot personally go and watch every corner of the farm. It is not possible for him. So what is done by him, that his computer is connected to the satellite, and that satellite gives him pictures of his field, and by watching these pictures he is able to have his control over the farm, and he use chemical fertilizers and pesticides wherever they are required, because he has the picture. Now he is knowing कि कहाँ पर pesticides की ज़रूरत है, कहाँ पर fertilizers की ज़रूरत है, तो उसके accordingly वो काम करता है. and बहुत ही जो machineries है वो भी उसको यूज़ करता है, जैसे tractors हैं, seed drills हैं, levelers हैं, combined harvesters and thresher. Harvester और thresher दोनों साथ में है ना. It's not only harvester, it's thresher also, so that all the various agricultural operations can be performed, है ना. तो इस तरह से उनका जो काम है वो बहुत ही हाई टेक होता है. और जब हार्वेस्टिंग होती है, ग्रेन्स निकल आते हैं, क्रॉप्स आ जाते हैं, तो फिर उसको स्टोर किया जाता है एक ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में, या फिर उसको मार्केट एजेंसी में सेल कर दिया. अगर प्राइस अच्छी मिल रही है तो वो उस समय सेल कर देते हैं. अगर उनको लग रहा है कि इस समय अगर वो बेचेंगे तो उनको बहुत लॉस हो जाएगा, तो वो क्या कर देते हैं कि उनका एक ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज है, वहाँ वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है ग्रेन जो है वो सारा का सारा. और यहाँ हम देखेंगे कि जो फार्मर हैं who are working in USA, actually they are working like a businessman. And in our country, what is the condition? They are working like a peasant farmer. So this is the comparison. You can just see what are the previous points to compare. So first of all, the most important point to compare between the agricultural practices or agriculture in India and in USA is size of holding. ओके, साइज ऑफ होल्डिंग. सेकेंड जो चीज़ हम दोनों के बीच में जो डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है यूएस की फार्मिंग और इंडिया की फार्मिंग में, द पर्पस ऑफ फार्मिंग. In countries like India, the developing countries like India, the farming is done for the purpose of what? For the purpose of subsistence. But in a country like USA, the farming is done for the purpose of selling. That is commercial farming and subsistence farming. This is the purpose of farming, which is completely different from each other. And the next one we see that residing place of the farmer. These are the points, है ना, जिससे हमें समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं. रिसाइडिंग प्लेस है residing place of farmer. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो नेक्स्ट क्या है. द नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस. वो देखेंगे कि वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं बहुत ही साइंटिफिक वे में हो रही हैं, है ना. सो वी विल see the difference in soil testing. यहाँ पर लैब में जाता है सॉइल टेस्ट होने के लिए, है ना. और इंडिया में जो भी फार्मर के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं उनसे एडवाइस लेके काम किया जाता है ना. सो दिस इज़ द डिफरेंस. देन द नेक्स्ट इज in USA we find that ये सॉइल टेस्टिंग में ही आपका ये भी आ जाएगा कि सब कुछ साइंटिफिक है. अगर सॉइल को ज़रूरत है फर्टिलाइज़र की तभी उसमें फर्टिलाइज़र पड़ेगा. हमारे यहाँ सॉइल की टेस्टिंग नहीं होती है मोस्टली, एंड वो अपने मन से
उसमें जो यूरिया है, पोटैश है, जो भी है उनको लगता है किसी की ज़रूरत होगी सॉइल को, वो डाल देते हैं। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ प्रॉब्लम इन आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, है ना। तो उसको भी रोकना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ द डिफरेंस। सॉइल टेस्टिंग की फैसिलिटी वहाँ है, हमारे यहाँ है, लेकिन प्रिवेलेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो नहीं हो पाती है। देन सेकेंड थिंग इज, नेक्स्ट थिंग इज हाईटेक फार्मिंग इज देयर, और वी कैन से यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, इन फार्मिंग। जैसे हमने देखा कि उसका जो कंप्यूटर है वो एक सैटेलाइट से लिंक्ड है, सैटेलाइट उसको पूरा पिक्चर दिखा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र को फिक्स कर रहा है, कहाँ डालना है, क्या करना है। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड द नेक्स्ट वन इज यूज़ ऑफ मशीनरी। जैसे हमने देखा ज़्यादातर जो किसान हैं वो अभी भी आज की डेट में भी दे आर यूजिंग बुलक्स फॉर प्लॉइंग द फील्ड इंस्टेड ऑफ ट्रैक्टर्स, और वहाँ पर पूरी की पूरी मशीनरी से ही होता है। मतलब दे कैन नॉट इमेजिन ऑफ डूइंग थिंग्स विथ द हेल्प ऑफ एनिमल्स और ऑल, है ना। तो दिस इज द डिफरेंस। देन अगेन द नेक्स्ट डिफरेंस इज इन द स्टोरेज फैसिलिटी। द सेवेंथ डिफरेंस इज ओके। सो व्हाट इज़ स्टोरेज फैसिलिटी। जो हमने देखा कि यहाँ पर नहीं अवेलेबल है फार्मर्स को स्टोरेज फैसिलिटी, जिसके कारण उनको जो भी रेट मिल रहा होता है उसको उनको सेल करना पड़ता है, और वहाँ पर उन्हें स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑटोमेटेड स्टोरेज सिस्टम है, जिसके कारण अंदर वो उनको ज़रूरत नहीं होती कि वो तुरंत बेचें, है ना। और नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि द नेचर, और वी कैन से the nature of this farming activity. So what is the nature? In USA the farmer is like a businessman. In India the farmer is just a simple, we can say a very oppressed peasant farmer. So these are the points of comparison between a farmer in India and a farmer in USA. So we have completed the chapter, and now we have some extra questions from this chapter. Now first of all, the most important question from this chapter is what do you mean by farm system? Okay. What do you mean by farm system? Okay, what is farm system? Farm system involves input, processing and output. What the important inputs are seeds, fertilizers, machinery and labor. The operations which are involved are plowing, sowing, irrigation, weeding and harvesting, and the output from the system is crops, wool, dairy and poultry products. In this you can draw the picture also, like input आपने लिखा है ना, यहाँ पर input हो गया, इसमें कुछ आप जो इनपुट सीड्स और फर्टिलाइजर्स है ये लिख दिया। देन प्रोसेसिंग हो रहा है, यहाँ पर आपने उसके
जो डिफरेंट ऑपरेशंस है, सीडिंग, वीडिंग, प्लॉइंग, ये सारा कुछ लिख दिया। और देन आउटपुट, यहाँ पर भी आपने क्रॉप है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको लिख दिया। तो ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। We will continue with this in the next class.